Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently released a comprehensive series of videos on the subject of resources and development for Class X CBSE in geography. The series aims to provide a deep understanding of the concepts related to resources and their sustainable development, with a thorough explanation of various types of resources like natural, human, and human-made. These videos ensure that students grasp the subject matter effectively. Furthermore, the series explores the significance of resources and development, highlighting multiple factors that influence their availability and utilization. It covers topics such as conservation of resources, resource planning, and sustainable development practices. These videos, created by highly qualified and experienced educators, provide a knowledge-rich explanation that not only caters to the syllabus requirements, but also helps students develop a broader perspective on resource management. Each video is designed to simplify complex concepts and engage students in a captivating learning experience. In addition to the videos, Ignited Minds Tutorials offers supplementary study materials, practice questions, and quizzes to enhance students' understanding and retention of the subject matter. With Ignited Minds Tutorials Resources and Development Series, Class X CBSE students can now delve into this significant aspect of geography with ease and confidence, ultimately empowering them with the knowledge required to become responsible global citizens. Okay, Bacha Party, we were doing resources and development. So now we will talk about how soil is a resource. ठीक है? तो क्या soil हमारे लिए resource है? Definitely है. Soil में हम भाई साहब सारा cultivation करते हैं, crops का निर्माण करते हैं. Our food primarily comes from the soil. Soil is the most important renewable natural resource. Now हम देखो यहाँ पे बोलने के लिए तो बोल रहे हैं कि renewable है, लेकिन इतनी जल्दी ये renew नहीं होता है. Soil बनता है आपके डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म से, और जिस रेट से हम इसको यूज़ कर रहे हैं उस रेट से ये बनता नहीं है. फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल टू फॉर्म इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हर इंसान, मतलब साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कम से कम 12 लाशों के ऊपर है. ठीक है, 12 लाशों के ऊपर हैं हम सब. ये जो सॉइल बना है इसमें भाई साहब लोग, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स ये मरे हुए हैं जो दबे हुए हैं, इससे सॉइल बनता है. द वे वी हैव बीन यूजिंग सॉइल, ठीक है, इट्स नॉट दैट फास्ट दैट इट गेट्स रिन्यूड. उतनी फास्ट ये रिन्यू नहीं होता है. ठीक है, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ. ये भाई साहब प्लांट ग्रोथ का मीडियम है एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ. ठीक है, तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये सपोर्ट करता है. द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. थोड़े से सेंटीमीटर को सॉइल को बनने के लिए millions of years लगता है. It takes millions of years. ठीक है. Important factors in the soil formation are relief. Relief मतलब आपका क्या लैंड फीचर है. ठीक है, लैंड फीचर के ऊपर आपका सॉइल पहाड़ी एरिया में सॉइल अलग होता है, फ्लैट एरियाज में सॉइल अलग होता है. ठीक है, वैलीज में सॉइल अलग होता है, रिवर के नीचे सॉइल अलग होता है, आपका क्या कहते हैं समुंदर के नीचे सॉइल अलग होता है. सो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स आर देयर. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखोगे आपका रिलीफ. पेरेंट रॉक, देखिए रॉक के डिकम्पोजिशन से भी सॉइल बनता है. सॉइल एक बनता है भाई साहब डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, और दूसरा बनता है भाई साहब आपके रॉक्स. ये जो रॉक्स होते हैं ये धीरे 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 टूटते हैं. बड़े बड़े जो रॉक्स हैं, तो ये जो सब आपको सॉइल दिख रहा है, एक टाइम पे ये बड़े बड़े पत्थर थे, ये धीरे धीरे वेदरिंग से टूटे हैं. ठीक है, और ये वेदरिंग का टूटना अलग अलग तरीके से होता है. जैसे समझ लो कोई रॉक रहा होगा, ये लेट्स से दिस इज बेसिकली ह्यूज रॉक. ठीक है, अभी इन रॉक्स में क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, ऐसे क्रैक्स होते हैं. इन क्रैक्स में भाई साहब क्या गया, पानी गया. यही पानी भाई साहब जब बर्फ़ बन जाता है तो ये टूटता है इसको. ठीक है, धीरे धीरे टूटता रहता है ये क्रैक्स. ठीक है, तो ये क्रैक्स में जब पानी भरता है तब धीरे 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 ये टूटता रहता है. लेकिन इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नहीं बन जाता है. सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एक तो ये होता है समुंदर के पास जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, देखो तो ये समुंदर का पानी कॉन्स्टेंटली इसको मारता रहता है. ठीक है, जिसके वजह से ये रॉक्स कॉन्स्टेंटली टूटते भी रहते हैं. सो दीज आर रॉक्स विच आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड टू द वाटर एंड हेंस देयर इज अ डिकम्पोजिशन.
बेड रॉक होता है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तो ये आपका बेड रॉक होता है, दिस इज बेसिकली बेड रॉक। ये भी देखिए समुद्र के पानी के कांस्टेंट झपट्टे से ये टूटते रहते हैं और डिकम्पोज होते रहते हैं, ठीक है। ओके, देन क्लाइमेट ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कितना भाई साहब टेम्परेचर है, जैसे अगर आपको भाई साहब दिखेगा रेगिस्तानी एरियाज़ में या डेजर्ट एरियाज़ में आपका ज़्यादा करके सैंडी सॉइल मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हैं, सो यू विल गेट अ सैंडी सॉइल आउट देयर डेजर्ट एरियाज़ में, ठीक है। सो वहाँ पे टेम्परेचर्स के हिसाब से सॉइल है। वेजिटेशन इंपॉर्टेंट, वेजिटेशन भी सॉइल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेजिटेशन होता है वो सॉइल को पकड़ के रखता है। आप जैसे मुंबई में रहते हैं तो मुंबई के सारे आजू बाजू एरिया में खाड़ी है, जैसे नवी मुंबई स्पेशली, इन खाड़ी एरियाज़ में मैनग्रोव्स रहते हैं, देखो, और ये मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैनग्रोव्स नहीं रहे, मैनग्रोव्स को काटना इलीगल है, क्योंकि ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अगर ये सॉइल पकड़ा नहीं रहेगा तो समुंदर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हाई टाइड लो टाइड तो होता ही रहेगा और समुंदर भाई साहब आगे बढ़ता रहेगा। ये मैनग्रोव सॉइल को पकड़ के रखते हैं ताकि वो सॉइल आपके समुंदर के साथ चला ना जाए जब हाई टाइड आता है, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग वेजिटेशन भी सॉइल का निर्माण करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ठीक है। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कहीं कोई और अर्थक्वेक हो गया तो आप देखेंगे अर्थक्वेक के टाइम पे पूरा लैंड का शेप ही चेंज हो जाता है, ठीक है। रिवर्स इधर से जा रहे थे पहले, अर्थक्वेक के बाद शायद इधर से जाएंगे, तो ये होता है, ठीक है। सो वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर, वॉल्केनोज की वजह से भी आपका भाई साहब सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ऑल दीज आर थिंग्स दैट हैपन। चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर जो बहता पानी है उसके एक्शन से भी काफ़ी सॉइल में चेंजेस आते हैं। विंड एंड ग्लेशियर्स, इससे भी भाई साहब काफ़ी सॉइल में चेंज आते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, तो काफ़ी डिकम्पोजर्स होते हैं, देखो सॉइल में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इनसे भी सॉइल में काफ़ी चेंज आता है, ठीक है। सो वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सॉइल के होते हैं भाई साहब, ठीक है। तो जब भी आप फार्मिंग करते हैं, जनरली जो भी आपके बड़े बड़े फार्म एरियाज होते हैं उनमें सॉइल की टेस्टिंग का गवर्नमेंट ने ये कराया है, ठीक है। लैब्स होते हैं जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होती है। सो बिफोर यू एक्चुअली गो इनटू फार्मिंग, द सॉइल इज टेस्टेड फॉर वेरियस थिंग्स, ठीक है। सॉइल का कलर क्या है, इसका थिकनेस क्या है, टेक्सचर क्या है, इसका एज क्या है, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। अलूवियल सॉइल्स बेस्ट फॉर्म ऑफ सॉइल है, ये आपको मिलेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं जो हाई एंड हिमालय से नीचे उतर रहे हैं, और जब ये उतर रहे हैं तो अपने साथ बहुत सारा सैंड और सिल्ट कैरी करते हैं, एंड दिस सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। देखो कैसा होता है, जब आप किसी बाल्टी में आपने पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा सैंड डाल देते हैं या कोई मिट्टी डाल देते हैं और उसको ज़ोर से घुमाते हैं तो वो घुला हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाएगा तब आपको दिखेगा कि जो मिट्टी है वो नीचे जमने लगेगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम के रिवर्स जो है तो माउंटेन से फ्लो रहे नीचे की तरफ, तो ये बहुत ज़ोर से घुल आ रहे हैं, इसीलिए इनके साथ सिल्ट और सैंड डिजॉल्व है। लेकिन जैसे ये नीचे लेवल पे आते हैं तो इनका रफ्तार कम हो जाता है, तो ये स्लो हो जाते हैं। स्लो हो जाते हैं तो इनके साथ जो मिट्टी है वो ये डिपॉजिट करने लगते हैं, दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग इट, एंड दैट्स हाउ अलूवियल प्लेन्स आर क्रिएटेड, ठीक है। आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, देखो सिर्फ बारिश से बात नहीं जमेगी, सिर्फ पानी से देखो इरिगेशन डेफिनेटली इज़ अ फैक्टर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, बट इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई यू सी सो मच ऑफ रेन, बट डू यू सी हियर कल्टिवेशन, डू यू सी हियर क्रॉप प्रोडक्शन? नो, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर शुगर केन आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज प्रोड्यूस मेजरली हियर। कॉटन भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन ये एक एग्रीकल्चर सेंटर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जाओगे पंजाब या उत्तर प्रदेश या बिहार के प्लेन्स में, दोज आर एग्रीकल्चरल प्लेसेस। वाई? बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, गंगा यमुना वगैरह, और ये गंगा और यमुना सिर्फ पानी नहीं लाते हैं, ये गंगा और यमुना अपने साथ ये सैंड और सिल्ट को भी डिपॉजिट करते हुए जाते हैं, और यही निर्माण करता है किस चीज़ का? अलूवियल सॉइल का, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ये रिच होता जाता है, ये सॉइल डिपॉजिट होता जाता है और सॉइल की क्वालिटी रिच होती जाती है, ठीक है। आपको दिखेगा कि क्रॉप प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्रॉप प्रोडक्शन में यहाँ पे और वहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि वहाँ पे बारिश कम है यहाँ से, लेकिन वहाँ पे आपका सॉइल का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट डिपोजिशंस हो रहे हैं अलूवियल सॉइल के, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली रिच अलूवियल सॉइल।
तो अलूवियल सॉइल्स, फिर आता है आपका ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट वी हैव, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अलूवियल सॉइल। ये आपका है भाई साहब अलूवियल सॉइल, ठीक है। सो दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। चलो बारिश बंद कर दें, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे बात करते हैं हम अलूवियल सॉइल की, ठीक है। ये तुम्हारी प्रिंसिपल अच्छी है, ऑनलाइन भी नहीं सेटअप करती है, बढ़िया, वरना ऑनलाइन क्लासेस आर देयर। ओके, अलूवियल सॉइल भाई साहब क्या होता है आपका, देखो अलूवियल सॉइल का फैलाव देखो, ठीक है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर रीजन आउट हियर। अलूवियल सॉइल इज स्प्रेड आउट इन सच अ वे, ठीक है। आपका ये पूरा अलूवियल सॉइल का फैलाव है देखो। और जहां जहां भी आप अलूवियल सॉइल देखोगे ना, बाय डिफॉल्ट वहां पे कोई ना कोई रिवर फ्लो होता रहेगा, बाय डिफॉल्ट। ऑलमोस्ट ऑल अलूवियल सॉइल्स विल हैव सम और द अदर आपका रिवर्स कनेक्टेड। जैसे इस प्लेन में आप देखोगे गंगा, यमुना, इंदस, सतलज ये सब फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्र वगैरह फ्लो हो रहा है। ये सब अपने साथ जो बड़े बड़े माउंटेन से रिवर्स फ्लो होते हैं, वो जैसे ही प्लेन्स में आते हैं भाई साहब उनका स्पीड स्लो हो जाता है, और जैसे ही स्लो होता है तो वो जो अपने साथ सिल्ट और सैंड और जो सॉइल कैरी करते हैं उसको भाई साहब छोड़ने लगते हैं। जैसे एक बाल्टी भर पानी में आपने उसको घुमाया तो ये गुला हुआ है, लेकिन जैसे उसको आपने ठहरने दे दिया, द सैंड और सॉइल और व्हाटएवर इट इज, इट गेट्स डिपॉजिटेड। तो जैसे ही आप स्पीड कम करते हैं वाटर की, उसकी डिसॉल्विंग पावर भी कम हो जाती है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ such a rich amount of alluvial soil is deposited along these plains, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई रिवर फ्लो होता ही रहेगा, ठीक है, जो अलूवियल सॉइल को डिपॉजिट करता है। इट इज द बेस्ट क्वालिटी सॉइल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। इसलिए देखो ये पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स, दे आर मेजरली इनटू क्रॉप कल्टीवेशन, स्पेशली पंजाब, क्योंकि पंजाब में तो 5 रिवर्स हैं भाई साहब, ठीक है। और ये सारे हिमालयन प्लेन से ओरिजिनेट होते हुए रिवर्स हैं। सो दे कैरी अ रिच अमाउंट ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स अलॉन्ग विद देम, ठीक है, क्लियर है, ओके। In fact, entire northern plains are made of alluvial soil. इंडिया का मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन प्लेन्स में होता है, ठीक है। अलूवियल सॉइल जहाँ पे पाया जाता है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। आप देखोगे इस रीजन में जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे कोई अलूवियल सॉइल नहीं मिलता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश के बावजूद भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। इतनी बारिश अगर दूसरे राज्यों को मिल गई तो बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा। वहाँ पे इरिगेशन के लिए आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश के बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मच ऑफ क्रॉप्स बिकॉज द कंटेंट ऑफ सॉइल इज नॉट दैट ग्रेट। अलूवियल सॉइल नहीं है, ठीक है, ओके। दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट आपके भाई साहब रिवर सिस्टम्स हैं। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स। तो आपके रिवर सिस्टम्स क्या क्या हैं, देखो ये आपका रिवर सिस्टम है, देखो दिस इज बेसिकली द रिवर सिस्टम, ये, हाँ। तो आपका देखो गंगा है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये आपका ब्रह्मपुत्र तो चाइना से ओरिजिनेट होता हुआ ऐसे एंटर कर रहा है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश, आपने शायद 9th में पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पानी का कंटेंट कंटेन करता है। एक्सेसिव वाटर है वहाँ पे वाटर एज अ रिसोर्स इज इन अबंडेंस, ठीक है। तो बहुत सबसे ज़्यादा वाटर अगर किसी स्टेट में पाया जाता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। एंड ब्रह्मपुत्र कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, ठीक है। गंगा प्लेन्स हैं, ये सारे जितने भी, देखो इंडस रिवर है, ये सारे जितने भी हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू ब्रिंगिंग अलूवियल सॉइल अलॉन्ग दीज नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। अलूवियल सॉइल इज फाउंड इन, ठीक है, अलूवियल सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो आपका महानदी, देखिए जहाँ जहाँ भी आपको रिवर मिलेगा, ये देखिए महानदी रिवर है, ये जाकर भाई साहब आपके बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है, तो देखो अलूवियल सॉइल डिपॉजिट हो गया। गोदावरी, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी, देखिए जब रिवर जो है समुंदर में मिल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका स्पीड सबसे स्लो हो गया रहेगा, उसका स्पीड स्लो हो गया रहेगा बोल के सबसे ज़्यादा डिपोजिशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल जो है वो भी एक रिच एग्रीकल्चरल कंट्री स्टेट है बिकॉज ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ अलूवियल सॉइल, ठीक है। सो अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन, सो ये सारे देखिए सारे आपको रिवर से कनेक्टेड मिलेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको अलूवियल सॉइल मिलेगा वो सारे रिवर से कनेक्टेड हैं। और ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये भाई साहब सदियों से होता आया है। तो आया अलूवियल सॉइल डिपॉजिट हुआ, फैल गया, अलूवियल सॉइल डिपॉजिट हुआ, फैल गया, और ऐसे 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 बहुत बड़े पैमाने तक वो सॉइल फैल जाता है, ठीक है। दैट इज हाउ द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड इफ यू सी ऑल दीज रिवर्स, दैट इज गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, all these are bringing alluvial soils from high end plains, ठीक है। Okay, so आपका देखो these soils are found in Rajasthan and Gujarat as well. The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay.
ये तीनों चीजें भाई साहब अलूवियल सॉइल में मिलती हैं। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। तो सॉइल पार्टिकल्स आपके थोड़े से बिगर इन साइज हो जाते हैं, ठीक है, ओके। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेन्स ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स। ऐसे पत्थरी सॉइल मिलता है आपको। जैसे अगर आप हरिद्वार जाएंगे या ऋषिकेश जाएंगे तो आपको देखो कि गंगा के प्लेन्स में आपको ऐसे पत्थर मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी वैसा वहाँ पे नीचे उतरना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, पूरा पत्थरी सॉइल रहता है जिसको आप शिवलिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ऋषिकेश में ऐसे पत्थर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स। ये क्यों हुआ रहेगा? एनी रीजन वाई यहाँ पे इतना पत्थर कंटेंट क्यों मिलता है? देखो रिवर्स उतर रहे हैं बड़े स्पीड से और आजू बाजू क्या है, पत्थर है, तो ये पत्थरों को तोड़ते जाएंगे। जो पत्थर के टुकड़े ये एक्चुअली बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे एक टाइम पे, अभी भाई साहब इनके टुकड़े हो गए, ठीक है। और बहुत सालों बाद शायद ये पूरा सॉइल ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पत्थर के टुकड़े आ रहे हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ आ रहे हैं। जहाँ भी रिवर बहुत ज़ोर से फ्लो होता है या वाटरफॉल होता है वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, ठीक है। खारगर में जो एक वाटरफॉल है वहाँ पे जाना, कभी कभी पुलिस लग जाती है वहाँ पे पीटने लोगों को, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स हो गए हैं। वो वाटरफॉल जो है वो अपने साथ कभी भी बड़े पत्थर को लेकर आता है और नीचे जो रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। सो इट कैन कॉज अ मेजर एक्सीडेंट एंड हैज प्रूव टू बी फेटल एज वेल, ठीक है। सो ऐसे जगहों पे जहाँ पे वाटर स्लोप में जा रहा है वहाँ पे ऐसे पत्थरों का एक्यूमुलेशन होता है। तो सॉइल इज बेसिकली कोर्स, ठीक है, यहाँ पे कोर्स हो जाता है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमेंट प्लेन्स सच एज दुआस, चॉस एंड टेराई। यहाँ पे भाई साहब पिडोमोन प्लेन्स हैं, मतलब ये पूरे प्लेन भी नहीं है, ऐसे हैं भाई साहब, ऐसे, ठीक है, दे आर लाइक दिस, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट। Okay, such soils are more common in pediment plains such as Duar, Rose and Terai. Pediment plain is an area found in the foot of mountains or hills. तो यहाँ पे देखो ऐसे जगह पे होता है ये pediment plains, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब पत्थर उत्तर सब लेकर नीचे उतरते ही, ठीक है। So these are plains that are found. Duars are the flood plains and foothills in the eastern Himalayas in northeast India around Bhutan. In India, the foothills of Jalpaiguri and Darjeeling districts are known as दुआस, ठीक है, इनको हम दुआस बोलते हैं। स्मॉल सीजनल स्ट्रीम्स आर नोन एज चोस विच डिसेंड फ्रॉम द शिवालिक रेंजेस। आपके हिमालयन रेंजेस से बड़े बड़े रिवर्स निकलते हैं, जैसे आपका इंदस हो गया, जैसे आपका गंगा यमुना वगैरह हो गया, और ये सीधा भाई साहब बे ऑफ बंगाल तक जाते हैं। तो बहुत लंबा दूरी ये तय करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सीजनल रिवर्स होते हैं, दीज आर स्मॉल सीजनल स्ट्रीम्स, मतलब जैसे बारिश के टाइम पे इन पे पानी दिखेगा, अदरवाइज ऑल द ईयर राउंड यू माइट नॉट फाइंड वाटर इन देम। तो दीज आर सम सीजनल स्ट्रीम्स आर नोन एज कोर्स विच डिसेंड फ्रॉम शिवालिक रेंजेस। तो शिवालिक रेंजेस जो महाराष्ट्र के साइड हैं तो वहाँ से ये डिसेंड होते हैं। ये बारिश के टाइम पे ही आपको दिखेंगे, जो झरना वगैरह होता है, ठीक है। Pediment plain is an area found on the foothills of mountains or hills. Terai is marshy land at the foothills of Himalayas. Marshy मतलब पानी वाला लैंड है, यहाँ पे ज़्यादा करके पानी मिलेगा, ठीक है। It is in the foothills of Himalayas. Okay. Apart from the size of the grains or components, soils are also described on the basis of their age. कितना पुराना soil है, ठीक है। So अकॉर्डिंग टू द एज अलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज खादार, ठीक है। तो एज के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। भंगार, आप बोलते हैं ना भंगार वाला आया है, तो ये सॉइल भी ऑलमोस्ट भंगार हो चुका है, मतलब इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। ये भंगार जो शब्द है वहाँ से ही आ रहा है, ठीक है। भंगार वाले को जो आप भंगार देते हैं मतलब वो किसी काम की चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, भंगारी हो चुका है ये सॉइल, ठीक है, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे व्हेन इट रेन्स हेविली इन द हिमालयस, तो बहुत जोर से हेविली रेन्स हो रहे हैं हिमालयस में। स्ट्रीम्स फ्लो डाउन, ऑब्वियसली बात है भाई साहब, आपके स्ट्रीम्स फ्लो डाउन हो रहे हैं। दे ब्रिंग डाउन स्टोन्स अलॉन्ग विद देम, तो ये स्टोन्स लाते हैं अपने साथ। द रीजन वेयर दी स्टोन्स एक्यूमुलेट, तो जहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं इज नोन एज भाबर। तो इसको भाई साहब हम क्या बोलते हैं, भाबर, ठीक है। द रीजन वेयर दी स्टोन्स एक्यूमुलेट इज नोन एज भाबर। इन दिस रीजन देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, बोल्डर्स, ऐसे बोल्डर्स होते हैं, ठीक है। ये बोल्डर्स ऐसे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ये बड़े बड़े स्टोन्स हैं। ग्रेवल, ऐसे स्टोन्स भी होते हैं, सैंड, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली एक्यूमुलेट इन दीज रीजन्स। हरिद्वार जाएंगे आप, ऋषिकेश जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे रिवर के, गंगा के आसपास आपको ऐसे स्टोन्स मिलेंगे, ठीक है। मैनी स्ट्रीम्स फ्लो अप टू दिस रीजन एंड डिसअपीयर। तो कुछ छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो यहाँ तक आते हैं, उनमें इतना तक आने का ही पानी होता है,
उसके बाद वो लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन सरस्वती नदी जो है वो दिखती ही नहीं है, ठीक है। ये दिखती नहीं है मतलब क्या है, वो फ्लो नहीं हो रही है, उसमें उतना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, तो सम स्ट्रीम्स डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाते हैं, उतना पानी नहीं है कि पूरा समुद्र तक जाएं, ठीक है। सो सम स्ट्रीम्स डिसअपियर, ओके। तो ये होता है आपका तेराई। दिस रीजन इज मार्शी लैंड नोन एज अ तेराई रीजन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे तेराई रीजन है, यहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, मार्शी लैंड है, ठीक है, ओके। मार्शी लैंड मतलब ज़्यादा करके पानी रहेगा इसमें। बंगाल में एक टाइप की खेती है जिसको हम पाट की खेती बोलते हैं। ये पाट क्या होता है, पाट बेसिकली एक स्ट्रिंग होता है जिससे रोप्स बनते हैं, ऑलमोस्ट मजबूती इसकी नायलन की तरह होती है। लेकिन पाट की खेती में आपका जो खेती है वो हर समय इतने पानी में डूबा रहेगा, पूरा जितना दिन प्रोडक्शन होगा उतना दिन भाई साहब इतने में डूबा रहेगा। और ये लंबे लंबे पार्ट होते हैं भाई साहब, इनको निकाल कर भाई साहब वो दूर तक किसान, काफ़ी मेहनत की खेती है ये, लेकिन इससे बहुत मजबूत आपके फाइबर बनते हैं, ठीक है। सो ये आपके तेराई रीजन में होती है। द ओल्ड एंड न्यू डिपॉजिट्स, ये आपके ओल्ड और न्यू डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली ओल्ड एंड न्यू डिपॉजिट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, आपका अलुवियल सॉइल अगर हम देखेंगे, खदार सॉइल्स आर फाउंड इन द रीजन्स नियर द रिवर बेसिन्स। तो आपके रिवर बेसिन्स के आजू बाजू आपको खदार सॉइल मिलेगा, ठीक है, ओके। इन रेनी सीजन्स द रिवर्स फ्लड एंड द एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिवर रीचेज द नियर बाई रीजन्स। तो जितना भी एक्सेस वाटर है ये वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। रेनी सीजन में आपका भाई साहब रिवर फ्लड हो जाएगा, तो एक्सेस वाटर भाई साहब यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप अगर देखोगे ना किसी बिल्डिंग में ही अगर वो पाइप लगा हुआ है, वो ऐसा लगा रहता है ना, देखो ये आपका क्या कहते हैं टिन शेड लगा हुआ है और टिन शेड के नीचे ऐसा पाइप लगा रहता है, उस पाइप से आप देखोगे कितनी ज़ोर से पानी गिरता है। मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग में थोड़े से एरिया में पानी इकट्ठा होकर जब स्लोप से डिसेंड करता है तो आपको इतना पानी मिल रहा है। तो आप सोचिए इतने सारे माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ कितना ही पानी स्लोप से गुजरता हुआ आएगा, तो इसमें बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दैट डिसेंड्स अलॉन्ग दीज रिवर्स। अलॉन्ग विद द फ्लड वाटर द सिल्ट कैरिड बाय द रिवर इज ऑल्सो डिपॉजिटेड हेयर, ठीक है। तो फ्लड वाटर के साथ ये जो सिल्ट है ये भी यहाँ पे भाई साहब डिपॉजिट होने लगता है। द सिल्ट ऑल्सो गेट्स डिपॉजिटेड हेयर। सच डिपॉजिशन ऑफ एल्यूवियम और सिल्ट इज नोन एज खदार। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, खदार, ठीक है। As these regions are flooded every year, a new layer of alluvium is deposited over the previous layer. तो इस तरह से alluvium डिपॉजिट होता ही रहता है। ये आया भाई साहब alluvium, फिर आया, तो न्यू लेयर ऑफ alluvium डिपॉजिट होता रहता है। There is always a new layer of alluvium that gets deposited. Hence khadar soil is called as new alluvium. ये सबसे प्रोडक्टिव सॉइल है। खाद आपने देखा एलुवियम सॉइल में 3 कैटेगरीज हैं, खादार, भंगार एंड, ठीक है। सो इसमें भाई साहब खदार में हमेशा न्यू डिपॉजिट होता रहेगा हर साल। ये फ्लड का पानी है, तो फ्लड का पानी जोर से आता है तो बहुत बड़ा डिपॉजिट हो गया भाई साहब। जैसे ही फ्लड खत्म हो गया तो पानी भाई साहब कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, लेकिन जो डिपॉजिट है वो तो रह जाएगा वहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली द खदार सॉइल एंड दिस इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, ठीक है, ओके। In certain years, due to torrential rain, the flood water of the river reaches far off places away from the rivers. कभी कभी फ्लड वाटर बहुत दूर तक पहुंच जाता है। टोरेंशियल रेन मतलब इनसीजेंट रेन, मतलब जो अब रेन बंद ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके बहुत दूर तक पहुंच जाता है, इट रीचेस फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है, ड्यू टू टोरेंशियल रेन। एलुवियम सिल्ट इज डिपॉजिटेड हियर, तो एलुवियम सिल्ट भाई साहब डिपॉजिटेड हो गया। सच सॉइल डिपॉजिटेड इज फार ऑफ रीजन्स इज कॉल्ड बंगार। तो बहुत दूर तक जो सॉइल डिपॉजिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बंगार। एज सच हैवी रेनफॉल डज नॉट अकर एवरी ईयर, द बंगार सॉइल लेयर इज नॉट रिन्यूड। तो ये तभी होता है जब बहुत ज़्यादा, देखो बरसात हुई तो यहाँ तक पानी हर साल आता है, ऐसा मालूम है, तो हर साल फिर से पानी ट्याऊं ऐसा हो जाएगा। जैसे आपका रेन खत्म हो गया तो ये वाला सॉइल क्या हो गया, नया एलुवियम सॉइल है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ तक पानी पहुँच जाता है, ये कभी कभी होता है, तो यहाँ तक पानी पहुँचता है, फिर से वो स्क्वीज डाउन हो गया। लेकिन ये हर साल की जर्नी नहीं है, हर साल ऐसा नहीं हो रहा है, तो हर साल यहाँ पे नया सॉइल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो बहुत सालों पहले कभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई रहेगी उसके वजह से यहाँ तक पानी पहुँचा था और उसके वजह से सॉइल डिपोजिशन हुआ था,
लेकिन वो हर साल रिन्यू नहीं होता है, हर साल इतनी बारिश नहीं होती है। तो इस टाइप के सॉइल को अपन क्या बोलते हैं, भंगार। मतलब अभी ये काम का नहीं रहा, एक टाइम पे जब ये डिपॉजिट हुआ था, जब नया नया था तब ये काम का था, लेकिन सक्सेसिव एग्रीकल्चर के बाद ये काम का नहीं रहता है। सो दैट्स द रीजन इट इज नोन एज भंगार सॉइल। Are we clear on this one? So this is actually deposits which have happened somewhere in the past due to heavy rains when the water levels reached up to this place. When the water levels reached up to this place, then the soil deposition happened at this place. Now the rains are not reaching till there. ठीक है? So this is basically not a soil which is renewed every year. ठीक है? तो ये वहाँ पे डिपॉजिटेड है, इसीलिए हम इसको भंगार बोलते हैं। ठीक है? आप जो हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं भंगार, वो यहाँ से ही आया हुआ है। ठीक है? Hence it is called old alluvium soil. The Bhangar soil has higher concentration of कंकड़ nodules that the खादर। तो यहाँ पे कंकड़ ज़्यादा मिलेंगे भंगार सॉइल में, खादर सॉइल से आपके कंकड़ के कॉन्सेंट्रेशन जो है भंगार सॉइल में ज़्यादा हैं। ठीक है? खादर हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन भंगार। तो खादर में ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं एंड मोर फर्टाइल। Alluvial soils as a whole are very fertile. तो alluvial soils as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. तो इसमें भाई साहब पोटैश भी होगा, phosphoric acid भी होगा और lime भी होगा। ठीक है? Mostly these soil contains adequate amounts of potash, phosphoric acid and lime. ठीक है? विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ, क्या क्या है भाई साहब इसमें क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, देखिए शुगर केन को ग्रो कर सकते हैं, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। तो ये सारी चीज़ों को आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है जिसकी वजह से ये होता है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो जो ड्राई एरियाज होते हैं, ठीक है, आर मोर एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब क्या होता है, देखो सॉइल की ना क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कुछ सॉइल होती हैं आपकी एसिडिक, कुछ कुछ सॉइल होती हैं आपकी एल्कलाइन और कुछ कुछ सॉइल होती हैं आपकी भाई साहब न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल। अगर एसिडिक कंटेंट है तो आप इसमें किस टाइप का फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, बेसिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे। ठीक है? अगर आपका एल्कलाइन है तो आप किस टाइप का फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, स्लाइटली एसिडिक टू मेक इट न्यूट्रल। ठीक है? इसीलिए सॉइल टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेन धूप निकल आई भाई साहब, MNR। ठीक है? तो यहाँ पे भाई साहब आपका एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल में अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है? सो दीज आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दैट हैपन। ठीक है? दीज आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दैट हैपन, बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। ठीक है? So write the characteristics of alluvial soil. Alluvial soil consists of various portions of sand, silt and clay. ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। देखो ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर वेरी फर्टाइल। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका इंडिया में अलुवियल सॉइल पे होता है, वेरी फर्टाइल। आप जो भी उगाओगे भाई साहब अच्छा खासा आपको प्रोडक्शन देगा। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ, क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं भाई साहब, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ। तो क्या क्या फसलें होती हैं, तो फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड लाइम, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, शुगर केन, पैडी, जैसे मैंने आपको बोला, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ठीक है? सीरियल मतलब दाल और पल्स क्रॉप्स आपके होते हैं। पैडी जैसे मैंने आपको बताया पाट की खेती बोलते हैं इसको, इतने पानी में होता है ये हमेशा। तो मतलब जब तक ये खेती होगी तब तक वो इतने पानी में ही रहेगा। तो आपको जो वो सॉइल दिख रहा था वहाँ पे, जहाँ पे ऐसे प्लेन्स है जहाँ पे पूरा पानी रहता है, तो ये बहुत मजबूत फाइबर होता है, मोर स्ट्रॉन्गर देन नाइलन एज वेल। ठीक है? ड्यू टू दिस हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड। सबसे ज़्यादा भाई साहब आपका क्रॉप प्रोडक्शन इन जगहों पे होता है एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो ऑब्वियसली भाई साहब क्रॉप प्रोडक्शन होता है, किसान फार्मर जो इसमें लगे हुए होते हैं, सो दे आर ऑल कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड दीज एरियाज। Soils in drier areas are more alkaline, ठीक है, and can be productive after proper treatment. Proper treatment मतलब आपने proper fertilizer जब डाल दिया, उसको न्यूट्रल बना दिया, फिर आप इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की तारीख में सॉइल तो आज की तारीख में जो सॉइल है उसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जनरली आप देखोगे जहाँ पे भी फार्मिंग प्रैक्टिस होती है वहाँ पे गवर्नमेंट ने लैब्स सेटअप किए हैं। इन लैब्स पे सॉइल टेस्टिंग इज़ ऑलमोस्ट फ्री।
ठीक है। तो एसिडिक सॉइल के लिए पहले आप जाकर अपना सॉइल सैंपल जमा कीजिए, उन लोग टेस्ट करेंगे, फिर रिकमेंडेशन देंगे कि ये वाला फर्टिलाइजर यूज़ कीजिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हाउ इट इज ट्रीटेड। आर वी क्लियर? तो च्युइंगम चबाता रहता है बहुत ज़्यादा। ओके, ब्लैक सॉइल, these soils are black in color and are also known as रेगुर soils। इसको अपन रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन, जो महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है आपका आइडियल है कॉटन के लिए, इसीलिए महाराष्ट्र में कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। ओके, एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विथ पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ये आ रहा है भाई साहब कहाँ से? पेरेंट रॉक से आ रहा है। जैसे अलुवियल सॉइल का मेन रीजन क्या है फॉर्म होने का? हाँ, रिवर्स, ठीक है। रिवर्स आर द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। ऐसे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन क्या है रीजन? फ्रॉम पेरेंट रॉक। ये रॉक्स भाई साहब टूटे हैं, टूटे 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 भाई साहब ब्लैक सॉइल बनाए, ठीक है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. Here rivers do not play an important role in the formation of this type of soil, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, this type of soil is typical in Deccan Trap, that is basalt region। basalt मतलब आपका एक टाइप का रॉक होता है, ये पेरेंट रॉक है। ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक बासल्ट रॉक है, ठीक है। ओके, इट स्प्रेड्स ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। तो ये ज़्यादा करके लावा से बना हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे कभी और इसी से ये बना हुआ है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ दिस। इट कवर्स, क्या क्या कवर करता है भाई साहब? प्लेटू एरिया ऑफ महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र एरिया का प्लेटू एरिया, सौराष्ट्र, ठीक है, मालवा रीजन इन मध्य प्रदेश, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़। इन सब जगहों पे आपका ये ब्लैक सॉइल बहुत बड़ी पैमाने पे पाया जाता है, ठीक है। ओके, गोदावरी रिवर भाई साहब, यहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो हो रही है। सो ब्लैक सॉइल, द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल है भाई साहब, बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से ये बना हुआ होता है, ठीक है। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकते हैं, बहुत देर तक ये पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन एक्चुअली होल्ड मॉइस्चर। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। तो इन ये सब आपके भाई साहब आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। जैसे आपका क्या कहते हैं, अलुवियल सॉइल किन किन चीज़ों में रिच था? पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसी तरह से आपका ब्लैक सॉइल किन किन चीज़ों में रिच है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, ठीक है। एंड जनरली दे हैव अ गुड रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट भाई साहब चूना जिसको हम बोलते हैं, मैग्नीशियम हो गया भाई साहब, पोटैश, ठीक है, एंड लाइम। ये सारी चीज़ें भाई साहब आपके भर भर के इन सॉइल में हैं, ठीक है। ओके, द सॉइल्स आर पुअर इन फॉस्फोरिक एसिड। और आपका देखो एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी भारी मात्रा में है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड पुअर क्वांटिटीज में है, ठीक है, नॉट दैट ग्रेट। दे डेवलप डीप क्रैक्स इन ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। तो आप देखोगे कभी कभी, आपने कभी पिच बनाया है क्या? ठीक है, और अगर पिच बनाओगे ना तो मतलब आप दूसरी जगह से मट्टी लाकर उस पर डालते हो, ये वगैरह करते हैं जो लोग भी क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद आप गर्मी के सीजन में देखोगे पिच में क्रैक्स आए हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये क्रैक्स क्यों आते हैं? ये क्रैक्स आना इस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दे डेवलप डीप क्रैक्स, और ये क्रैक्स आना अच्छा है ताकि भाई साहब आपका प्रॉपर एरेशन हो, मतलब प्रॉपर एयर जा सके इसमें, ठीक है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन, मतलब इसमें एयर जा सके, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एयर जा सके। These soils are sticky when wet, काफ़ी स्टिकी हैं ये जब वेट होते हैं, मतलब इन पे चलना फिरना बहुत मुश्किल का काम होता है। दे आर वेरी स्टिकी व्हेन दे आर वेट, ठीक है। सो क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, ये मॉइस्चर को या वाटर को फ्लो होने नहीं देते हैं, ये मॉइस्चर को रिटेन करेंगे। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। इसमें आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, काम नहीं कर सकते, मतलब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। आप देखोगे जहाँ जहाँ पे भी कामोटे में थोड़ा बहुत ग्राउंड एरिया है वहाँ पे पानी जमा हुआ है, तो ये पानी नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि इस पानी को होल्ड करके रखा है इस सॉइल ने, ब्लैक सॉइल होल्ड करके रखा। इट विल नॉट अलाउ द वाटर टू पर्कुलेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच खेती बाड़ी करना लगभग असंभव हो जाता है। अगर आपको खेती बाड़ी करना है और इस वाटर को टैप करना है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज इस सॉइल में वाटर रिटेन हुआ रहेगा, ठीक है। आप क्या ही भाई साहब उसमें प्लाव करोगे या कैसे उस सॉइल को टिल्ट करोगे, तो काफ़ी तकलीफदायक हो जाती है ये।
द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, और आपका अलुवियल सॉइल किससे बना हुआ था? सैंड, सिल्ट एंड क्ले, याद आ रहा है भाई साहब, ठीक है। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये एक स्ट्राइकिंग फीचर है, ठीक है। दे आर वेल नोन, और ये अलुवियल सॉइल दे आर वेल नोन फॉर देयर फर्टिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब? अलुवियल सॉइल किन किन चीज़ों से बना हुआ था? फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड लाइम, और ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। इसमें किस चीज़ की कमी है? फॉस्फोरिक एसिड की। These soils are generally poor in phosphoric acid, ठीक है। ओके, दे डेवलप डीप क्रैक्स, तो इनमें डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं ड्यूरिंग हॉट वेदर, और ये अच्छा है क्योंकि ये सॉइल को एरेट करता है, ठीक है, विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो इसको अगर ठीक से आपने लैंड को टिलिंग नहीं किया होगा तो भाई साहब पानी जमा रहेगा। आप कहीं भी जाओगे ना, अगर ठोस जमीन रहेगी ना, पानी ऊपर ऐसा ही रहेगा अभी, ठीक है। अगर उसमें आपने गड्ढे उड्ढे किए रहेंगे या उसको टिल किया रहेगा तो ही पानी नीचे जा पाएगा, ठीक है। सो इट विल रिटेन द मॉइस्चर, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। आपके ब्लैक सॉइल कहाँ पे डेवलप होता है? उनका पेरेंट रॉक कौन है? बासल्ट रॉक, ठीक है। बासल्ट रॉक इज द पेरेंट रॉक। ये जो सॉइल है रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे डेवलप होते हैं। ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और आपका अलुवियल सॉइल, उसका कोई पेरेंट रॉक नहीं है, वो सैंड, सिल्ट एंड क्ले जो रिवर्स से होता हुआ आ रहा है उसके डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। आपका ब्लैक सॉइल बनता है रिवर के डिपोजिशन से नहीं, एक्चुअली डिकम्पोजिशन ऑफ बासल्ट रॉक, ठीक है। सिमिलरली जो आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, उनसे बनता है आपका रेड सॉइल, ठीक है। ओके, रेड एंड येलो सॉइल, दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर, जनरली रेड कलर होता है इनका, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्फिक रॉक्स। तो आपके आयरन के वजह से यहाँ पे एक रेड कलर आता है, आयरन का जैसे रस्ट फॉर्म में रेड कलर हो जाता है वैसा यहाँ पे रेड कलर होता है, ठीक है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड मतलब जहाँ पे जब पानी जमा होगा तो वहाँ पे आपको येलो दिखेगा, अदरवाइज यू विल फाइंड इट टू बी रेड। माथेरान वगैरह गए यहाँ, आपको वहाँ पे वैसा आपके जूते पूरे लाल हो जाएंगे अगर वहाँ से आप आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रेड कलर्ड सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पानी जमा होता है तो ये येलोइश कलर डेवलप होता है, इट बेसिकली डेवलप्स अ येलोइश कलर, ओके। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो ज़्यादा करके इन जगहों पे आपके सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू में रेड सॉइल डेवलप होता है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, इन सब जगहों पे भाई साहब ये पाया जाता है, ठीक है, ओके। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड अलॉन्ग द पिडिमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पिडिमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पिडिमेंट जोन क्या होता है? ये स्लोप और ये आपका जो फ्लैट लैंड है उसके बीच का एरिया, जस्ट और द फुटफॉल ऑफ अ माउंटेन, फुटफॉल ऑफ अ माउंटेन में आपका पिडिमेंट एरिया है, ठीक है। पिडिमेंट रेफर्स टू द स्लोप दैट कनेक्ट्स द माउंटेन एंड द प्लेन, ये आपका पिडिमेंट एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आपका प्लेन एरिया में मतलब जस्ट द फुटफॉल ऑफ द माउंटेन, ओके। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब लैटराइट सॉइल में। व्हाट इज बेसिकली लैटराइट सॉइल? सो लैटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक, ठीक है। तो लैटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन एक लैंग्वेज है जिसमें से ये डिराइव हुआ है, और ये होता है भाई साहब लेटर विच मीन्स ब्रिक, ठीक है, ओके। द लैटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो यहाँ पे लीचिंग होती है भाई साहब, मतलब अंदर ही अंदर पानी ऐसा जमा हुआ रहता है, ठीक है। लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल द लाइम एंड सिलिका इन द लैटराइट सॉइल रॉक्स डिसॉल्व इन द रेन वाटर एंड आर वॉश्ड अवे।
तो जो भी लाइम होता है वो वॉश्ड अवे हो जाता है। लाइम और सिलिका वाटर में डिजॉल्व होते हैं और वॉश्ड अवे हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स particularly the decomposers like bacteria get destroyed due to high temperature। तो ह्यूमस कंटेंट भाई साहब आपका सॉइल का लो होता है, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादा करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पर्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लैटराइट सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ, लेकिन अगर आपको लैटराइट सॉइल को क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ करना है तो आपको बहुत हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स उसमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर मतलब उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स से, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे, मैन्योर्स। These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha and Assam. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, ठीक है, Kerala, Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea, ठीक है, coffee. What else? ठीक है, the soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for क्रॉप्स लाइक कैशू नट। कैशू नट मतलब काजू का खेती होता है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। ओके, द लैटराइट्स आर डेवलप्स इन एरियाज विथ, तो जहाँ पे भाई साहब हाई टेम्परेचर हो, विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। काफ़ी भाई साहब अंदर ही अंदर पानी जा रहा है, लीचिंग हो रही है, हैवी रेन। तो पहला कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर और हैवी रेन्स, दोनों ये लैटराइट सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो, और ये खराब इंडिकेशन है। ह्यूमस कंटेंट मतलब मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी आपकी लो है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ह्यूमस कंटेंट मतलब होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। सॉइल में जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे सॉइल की फर्टिलिटी भी उतनी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा करके हीट से मर जाते हैं। जैसे आपको बोला कि यहाँ पे भाई साहब ऐसे रीजन्स में ये सॉइल बनता है जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो और रेनफॉल भी हाई हो, तो टेम्परेचर की वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लैटराइट सॉइल्स आर सूटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेस। तो यहाँ पे भाई साहब आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर बहुत ज़्यादा लगेगा अगर आपको क्रॉप कल्टीवेशन करना है। सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, तेलुगु, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैश्यू नट के लिए कौन सा सॉइल सबसे ऑप्टिमम है तो इट इज़ लैटराइट सॉइल, ठीक है। ओके, एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इनका कलर होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। सैंडी मतलब आप जानते हैं सैंड, और सलाइन मतलब इसमें आपका जो सॉल्ट कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। The salt content is high. In some areas the salt content is very high. कहीं कहीं पे तो सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि भाई साहब आप सॉल्ट निकाल कर भाई साहब नमक बना सकते हैं, ठीक है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग। जैसे गुजरात के काफ़ी एरियाज़ हैं, मुंबई में भी काफ़ी एरियाज़ में होता है ये। अगर आप वाशी से आगे चले जाओगे तो आपको सॉल्ट पैंस मिलेंगे, आपको दहीसर, भाईंदर उस एरियाज़ में भी आपको सॉल्ट पैंस मिलेंगे। मुंबई में भी काफ़ी एरियाज़ में ये सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ओके, due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture। तो सॉइल में भाई साहब मॉइस्चर नहीं है और ह्यूमस नहीं है, जिसके वजह से भाई साहब इवेपोरेशन फटाफट होता है और उसमें से हम नमक निकाल सकते हैं। एरिड सॉइल्स हैं, these are basically arid soils. The low horizons of the soil are occupied by कंकड़ because of the increasing calcium content downwards। तो इसमें काफ़ी सारा आपका कैल्शियम कंटेंट है जिसकी वजह से आपको कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड सॉइल होराइजन्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब सॉइल होराइजन्स में इफ़ यू ऑब्जर्व अ सॉइल सेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द हार्ड रॉक एट द डेप्थ यू विल फाइंड डिफरेंट लेयर्स। तो ग्राउंड सरफेस से लेकर जब नीचे 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 आप जा रहे हैं तो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स? दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज सॉइल होराइजन्स। द टॉप लेयर कंटेन्स लिटर एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे भाई साहब आपके लिटर मतलब जो भी आपका प्लांट और एनिमल वेस्ट है, प्लांट और एनिमल वेस्ट सारा इसी टॉप लेयर में रहेगा। इसमें रूट्स भी रहेंगे प्लांट्स के ऑब्वियसली, ठीक है। इन द लेयर बिलो इट यू विल फाइंड पार्शियली और टोटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका डिकम्पोज लेयर आपको मिलेगा इस लेयर में, ठीक है। द नेक्स्ट लेयर कंटेन स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक। छोटे छोटे पीसेज हैं रॉक के, ठीक है। दिस विल कंटेन स्मॉल, यहाँ पे रॉक बनना चालू हुआ है, एक्चुअली में रॉक इधर मिलेगा आपको, ठीक है। ओके,
सो द लोवेस्ट लेयर इज दैट ऑफ अनवेदर्ड रॉक। अनवेदर्ड रॉक मतलब ऐसा रॉक जिसका अभी तक डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉइल दैट यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व, ठीक है। यू विल जनरली गेट दीज लेयर्स। अ सॉइल विथ वेल डेवलप्ड होराइजन्स इज कॉल्ड अ मैच्योर सॉइल। एन एनॉर्मस पीरियड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच अ सॉइल। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस सॉइल के निर्माण के लिए। A lot of time is spent before it actually gets manufactured, ठीक है। In arid soil, the conker layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. तो ये arid soil है, तो ये कंकर layers हैं, यहाँ पे भाई साहब infiltration नहीं होता है water का, ठीक है। तो ये आपका water यहाँ तक नहीं जा पाता है, ठीक है। Okay. After proper irrigation, these soils become cultivation, as has been in the case of Western Rajasthan. तो काफ़ी सारा इरीगेशन मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा पानी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर इरीगेशन के बाद आप इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन एरिड सॉइल्स में कल्टीवेशन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, ठीक है। ओके, forest soils. Now we'll talk about forest soil. These soils are found in hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. तो ऐसे soils हैं hilly और mountainous areas में, ठीक है। The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed, ठीक है, जहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। They are loamy and silty in valley sides. तो लोमी होते हैं और सिल्टी होते हैं इन वैली साइड्स, ठीक है। लोमी मीन्स द सॉइल हैज इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले। तो सैंड भी रहता है और क्ले भी रहता है, और ये इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 50-50% पे हैं। लोमी एंड सिल्टी, सिल्टी मतलब जो सिल्ट कैरी होता है, ठीक है, माउंटेनियस एरियाज में, ठीक है। सिल्ट रेफर्स टू द फाइन सैंड, क्ले और अदर मटेरियल कैरिड बाय रनिंग वाटर एंड डिपॉजिटेड एज अ सेडिमेंट। तो ये सिल्ट हमेशा भाई साहब रनिंग वाटर रिवर्स से जो आता है उसमें से ये कैरी होता है। तो लोमी एंड सिल्टीस होता है सॉइल आपका, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल्स में। एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, कोर्स ग्रेन ही होता है सॉइल, ठीक है, अपर स्लोप्स में। In the snow-covered region of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. बहुत कम इनमें ह्यूमस होता है, ठीक है, वेरी लेस ह्यूमस, यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। इफ यू ऑब्जर्व अ सॉइल सेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द हार्ड रॉक एट अ डेप्थ, यू विल फाइंड डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स होते हैं। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रेसेस एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल। तो आपके रिवर ट्रेसेस और एल्यूवियल सॉइल्स जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। दीज सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल्स इन द माउंटेनियस रीजन्स, रिवर्स फ्लोइंग गॉर्जेस, ऐसे भाई साहब रिवर्स फ्लो होते हैं, ठीक है। और जब रिवर्स फ्लो होते हैं, बट एज सून एज द रिवर एंटर्स द प्लेन्स विच इज़ अ वाइडर एरिया, तो अभी देखो यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है, और जैसे ही एक वाइडर एरिया में प्लेन में आता है तो उसका वेलोसिटी कम हो जाता है, ठीक है, उसका फैलाव बढ़ जाता है लेकिन वेलोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। द एल्यूवियम कैरिड बाय द रिवर इज अब्रप्टली डिपॉजिटेड एयर, जैसे ही फैलाव बढ़ गया तो आपका भाई साहब वेलोसिटी कम हो गया तो एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। द एल्यूवियल सॉइल स्टार्ट्स गेटिंग डिपॉजिटेड। आप मतलब गंगा रिवर को अगर आप देखोगे लेट्स से इलाहाबाद में या हरिद्वार में, और गंगा रिवर को जाकर अगर आप हिमालयस के ऊपर देखोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे भाई साहब ये कैसा है, इतना डिफरेंस कैसे है। वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रीम है और यहाँ पे इतना बड़ा रिवर हो गया ये, ठीक है। दैट्स व्हाट हैपेंस, तो इट फ्लोज, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी स्थिर हो जाती है, ठीक है। सो द एल्यूवियन कैरिड बाय द रिवर इज अब्रप्टली डिपॉजिटेड एयर। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे ना तो जो गंगा नदी आपको दिखेगी भाई साहब ऑलमोस्ट समुंदर दिखेगा, कितना बड़ा समुंदर है, ठीक है, मतलब एक समुंदर की तरह इतना बड़ा है। बट इफ यू गो इन हिमालयन रीजन्स इट्स वेरी नैरो, इट्स वेरी नैरो। आप मतलब इसको मैच नहीं कर पाएंगे, अरे यार हिमालय में तो इतना नैरो दिख रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा कैसा हो गया, कहाँ से आया इतना पानी। तो डिफरेंस ये है कि भाई साहब यहाँ पे पानी बहुत ज़ोर से है, वहाँ पे पानी आपका स्लो हो गया है, पानी का कंटेंट बढ़ गया लेकिन स्लो हो गया है, ठीक है। ओके, सो ये एलुवियल फैंस हैं, दीज आर बेसिकली एलुवियल फैंस। तो इस तरह से देखो रिवर जाता है। द डेनेंडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो भाई साहब ये जा रहा है बहुत फोर्स से माउंटेन्स में, और ये अपने साथ सॉइल को कैरी करते हुए जा रहा है। डेनेंडेशन, दैट इज कॉल्ड डेनेंडेशन। भाई इतने स्पीड से वो काटता ही रहेगा ना सॉइल को, इतने स्पीड से। आप अगर देखोगे जो गाड़ी जहाँ पे वॉश होता है, गाड़ी को धोने का दो तरीका है, जो वॉचमैन जैसे साफ करते हैं भाई साहब, ठीक है। और अगर आप एक्चुअली प्रॉपर वॉशिंग कराते हो वॉशिंग सेंटर्स में तो लोग ज़ोर से डालते हैं ना, पाइप से ज़ोर से निकलता है, क्योंकि जब आप वेलोसिटी बढ़ा देते हो तो उसका भाई साहब डिज़ोल्विंग पावर भी बढ़ जाता है,
वो मैल को अभी जल्दी से पकड़ेगा। जैसे आपके वॉशिंग मशीन में आप क्या कर रहे हो, आप कपड़े को डाल रहे हो, उसको घुमा रहे हो, तो स्पीड बढ़ गया भाई साहब, इस स्पीड में वो डिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है। तो जैसे ही आपके जो रिवर्स होते हैं जब वैलीज में से फ्लो कर रहे हैं, माउंटेनियस एरियाज में से फ्लो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो डिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, तो इसमें काफ़ी सारा डिजॉल्विंग हो जाता है। ठीक है, द डेनेंटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन प्लेन एरियाज में आपका खतरनाक है, लेकिन इन एरियाज में होना चाहिए। देखो, प्लेन एरियाज में अगर सॉइल इरोजन हो गया तो हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्लेन एरियाज में सॉइल इरोजन को हमको बचाना है। ठीक है, जैसे समझ लो कोई भाई साहब आपका ये प्लेन एरिया है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ प्लेन एरिया, ठीक है, जहाँ पे आप क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं। अभी क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं अगर इस एरिया में, तो उस एरिया के सॉइल को पकड़ के रखना है भाई साहब। थोड़ा सा हवा आया या थोड़ा सा भाई साहब आपका बारिश हुई और ये सॉइल चला गया तो नहीं चलेगा। तो अपन इस सॉइल को पकड़ के रखने के लिए क्या करते हैं, ट्रीज लगा देते हैं। ठीक है, ये ट्रीज जो है तो चारों तरफ घेर रख के रखते हैं इसको, तो प्लेन एरिया के सॉइल को जाने नहीं देते हैं। द डेनेंटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो ये भाई साहब आपका हो जाता है सॉइल इरोजन। ठीक है, क्लियर पीपल। हम दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गोज ऑन साइमल्टेनियसली। तो ये भाई साहब सॉइल फॉर्मेशन इरोजन साइमल्टेनियसली होता है, एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। ठीक है, समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग करेंगे या डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बैलेंस मेंटेन रहता है। पहाड़ों से सॉइल इरोजन होता है और प्लेन्स में सॉइल डिपॉजिट होता है, लेकिन कभी कभी हम प्लेन्स को तबाह करते हैं। कब? जब हमने बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ कर ली या डिफॉरेस्टेशन कर लिया, तो अभी तक जो सॉइल को पकड़े था, कौन सी चीज़ें जो आपके फॉरेस्ट थे या ट्रीज जो सॉइल को पकड़ के रख रहे थे, वो अभी बेकार हो जाते हैं। ठीक है, ओके। डिफॉरेस्टेशन हो गया भाई साहब आपका, देखो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग हो गई भाई साहब, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गई, ये ऑल दीज विल while natural forces like wind, ठीक है, फिर आपका ग्लेशियर, देन वी हैव वाटर, ठीक है, ये सब तो आपके नेचुरल फोर्सेस हैं, लेकिन ये नेचुरल फोर्सेस काम तभी करेंगे जब हम सावधानी नहीं बरतेंगे। ठीक है, जब हम भाई साहब असावधान हो जाएंगे, जब हम भाई साहब ट्रीज़ को काटे जा रहे हैं। अभी ट्रीज़ को काटने से डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो सॉइल को पकड़ रख के रखते हैं इनके रूट्स, वो भी भाई साहब हम उखाड़ फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल इरोजन हो जाती है। ठीक है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एंड गलीज। तो ये क्लेई सॉइल से कट होते हैं और डीप चैनल्स हो जाते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज अ बैड लैंड। तो धीरे धीरे भाई साहब अगर किसी लैंड में अपने सॉइल को होल्ड करके नहीं रख पाए आप, तो उधर से सॉइल आने के बावजूद भी, अलुवियल सॉइल होने के बावजूद वो बैरन लैंड हो जाता है। इट इज़ रेंडर्ड एज अनफिट फॉर कल्टिवेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर नेचर इज़ गिविंग टू अस वी प्रिजर्व इट इन अ साइंटिफिक वे। हम भाई साहब अगर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर देंगे तो इस सॉइल को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन द चंबल बेसिन, चंबल एरिया जो है, ठीक है, सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइंस। तो ये भाई साहब मतलब पहले के ज़माने के डाकुओं का एरिया हुआ करता था। ठीक है, चंबल घाटी में गब्बर सिंह जैसे डाकू रहते थे। ठीक है, बैरन लैंड्स हैं बेसिकली, यहाँ पे इनको पकड़ना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो यहाँ पे रहते थे। ठीक है, यहाँ पे घर बना के आराम से रहते थे। यहाँ पे उनको ही मालूम था किधर से किधर भागना है, क्या है। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए पुलिस को इनको पकड़ना बहुत मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ठीक है, सो ऐसे ऐसे तरकीबें लगाते थे या ऐसे ऐसे जगहों से भागते थे कि पता ही नहीं चलता था। सो इन द चंबल बेसिन सच एज लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइंस। ठीक है, तो आपके भाई साहब रिवाइंस, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। तो वाटर एक शीट की तरह भाई साहब फ्लो हो रहा है लार्ज एरियाज। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। तो आपका टॉप सॉइल क्या हो रहा है, वॉश्ड अवे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। तो पूरा का पूरा शीट जो है तो जा रहा है, इसको भाई साहब प्रिवेंट करना पड़ेगा। ठीक है, otherwise this land will be rendered as useless in certain amount of time. Ploughing along the counter lines can reduce the flow of water down the slopes. तो ऐसे अगर काउंटर लाइन से अगर आपने ऐसे प्लाव किया हुआ है तो जो इरोजन हो रहा है उसको बचा सकते हैं। ठीक है, सो प्लाउइंग दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लाउइंग। इस तरह से प्लाउइंग करेंगे अगर आप, तो सॉइल जो नेचुरली इरोड हो रहा है ड्यू टू माउंटेनियस एरियाज़ में भाई साहब पानी बहुत ज़ोर से नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो सॉइल को कैरी करते हुए लेके जाता है। लेकिन अगर ऐसे आप काउंटर प्लाउइंग करेंगे तो वो बचा सकते हैं। ये टेक्निक इस्तेमाल होती है दार्जिलिंग में टी गार्डन्स में। ठीक है, टी गार्डन्स में ऐसे काउंटर प्लाउइंग होती है।
जो आपके इस सॉइल इरोजन को बचाती है, ठीक है। ओके, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। तो आपको देखो वैसे ये स्लोपी एरिया है, तो ऑब्वियसली भाई साहब क्या होगा, पानी इस पूरे सॉइल को कैरी करते हुए लेकर जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसे स्टेप्स बना दिए, ठीक है, तो यहाँ पे पानी इधर आया, इधर ठहरने लगेगा, ठीक है। तो सॉइल को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। तो इससे आपका इरोजन बचता है, क्योंकि यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऊपर लैंड रखा है ना, तो ये जो पानी है ये बह नहीं पाएगा, ये इसको क्रॉस करके नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। तो बहुत सारे जगहों पे वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयज में जो माउंटेनियस एरियाज हैं और यहाँ पे सॉइल इरोजन अच्छा खासा है, वहाँ पे अपन ने क्या टेरेस फार्मिंग डेवलप किया है। वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग इन दीज प्लेसेस, ठीक है। ओके ओके ओके। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये क्या होता है भाई साहब, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। तो मतलब ऐसे खांचों में हमने इसको स्ट्रिप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो कहीं देखो ऐसे जैसे ये ग्रास उगना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे हम जानबूझकर ग्रास को होने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रास जो है सॉइल को पकड़ के रखेगा, सॉइल को उड़ने नहीं देगा, हवे से या पानी से सॉइल को बहने नहीं देगा, सॉइल इरोजन को अवॉइड करेगा। ग्रास के रूट्स नीचे तक जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ठीक है। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। तो जब विंड आता है तो ये सॉइल इरोजन नहीं होगा। कभी कभी हम ग्रास को काट देते हैं वीडी साइड से, और कभी कभी हम रख देते हैं। जहाँ पे सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे हम भाई साहब इसको रख देंगे, ठीक है। विंड से सॉइल इरोजन के चांसेस जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे इसको हम रख देंगे, ठीक है। This method is known as strip cropping. So what is strip cropping? The keeping of grass in between different channels of crop production in order to hold the soil so that it doesn't get carried away due to erosion by wind is known as strip cropping. ठीक है? Planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. कभी कभी जैसे हम ग्रास डालते हैं वैसे ऐसे ट्रीज, ये ट्रीज हमको ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ऐसे लाइन से हमने ट्रीज कल्टीवेट कर दिए। ये ट्रीज क्या करेंगे, सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। दे विल नॉट अलाउ द सॉइल इरोजन टू हैपन व्हेन देयर इज अ हेवी स्टॉर्म और विंड और वाटर फ्लो, ठीक है। देयर रूट्स गो डीप इनटू द अर्थ एंड दे विल होल्ड द सॉइल। तो ऐसे लाइन से हमने इसको, ये दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग ग्रास भी होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग विथ ट्रीज भी होता है, ठीक है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, शेल्टर बेल्ट्स। ये आपके शेल्टर बेल्ट्स हैं, इसको पर्पसली उगाया जाता है। द शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। सैंड ड्यून्स भाई साहब, आप अगर देखोगे ना रास्ते में अगर कोई ट्रक आकर सैंड को फेंक कर जाता है तो आप देखो कुछ दिनों बाद वो सैंड फैलता रहता है ना। तो इसी तरह से राजस्थान का भी सैंड फैलता रहेगा। ये फैले ना, इसलिए भाई साहब इसको पेड़ों से घेर दिया जाता है। आप में से कोई अलीबाग गया है? अलीबाग, काशिद वगैरह आप जब अगर जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे आप नीचे उतरते हैं आपको ये मतलब ऐसा, ये पहाड़ है ना, इन पहाड़ों में आपको पेड़ दिखेंगे और उन पेड़ पे नंबरिंग दिखेगी आपको, ठीक है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। इन पेड़ों का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो ये समुंदर जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये समुंदर पहाड़ को काटता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ये पेड़ रूट्स को पकड़े हुए हैं, तभी जाकर भाई साहब वो बीच बना हुआ है, वरना ये आगे बढ़ता रहेगा एंड इट विल बिकम लेस ऑफ लैंड फॉर अस, ठीक है। तो इसीलिए वो पेड़ों की नंबरिंग हुई है। अगर एक भी पेड़ गायब हुआ ना तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, काटा किसने। ऐसे पेड़ों पे एक्चुअली नंबरिंग इनग्रेव्ड है, ये 1 नंबर का पेड़ है, ये 50 नंबर का पेड़ है, ऐसे है, उसको काट नहीं सकते आप भाई साहब, ठीक है। सो ऐसे जगह तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन में ही हम पेड़ उगाते हैं, हम सॉइल इरोजन को प्राइमरली बचाने के लिए पेड़ों को उगाते हैं। आपके जो मैनग्रूव्स हैं जो आपके खाड़ी एरियाज़ में, स्पेशली नवी मुंबई एरिया में बहुत ज़्यादा है, और मैनग्रूव्स को काटना इलीगल है। ये अगर नहीं रहे तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये पानी पूरा जो हाई टाइड में आएगा वो अंदर आएगा, ठीक है। ये जो पानी ऊपर बरस रहा है इसी को हम नहीं संभाल पा रहे हैं, और समझ लीजिए भाई साहब समुंदर से भी अगर पानी आने लगे सो इट विल बी अ हैवोक फॉर अस, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए मैनग्रोव्स भी एक ऐसे टाइप के ट्रीज़ हैं जो सॉइल इरोजन को बचाते हैं। सॉइल इरोजन को बचाना सिर्फ कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है, सॉइल इरोजन को बचाना आपके रहने के लिए भी होता है, ठीक है। ओके, so these are known as shelter belts. There are several measures or steps of controlling land degradation. A few of them
टेरेस फार्मिंग तो आपके हिल्स में प्रैक्टिस होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरेसेस लाइक स्टेप्स और स्टेयर्स कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन. दीज रिड्यूस द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर. रनिंग वाटर का जितना ज़्यादा स्पीड होगा सॉइल इरोजन भी उतना ही ज़्यादा होगा. टेरेस फार्मिंग में क्या हो रहा है, ये आ रहा है भाई साहब आपका, आपने ये बना दिया, फिर से आ रहा है भाई साहब आपका ये ऐसे बना दिया. तो ऐसे टेरेस फार्मिंग में वैसा क्या हो जाएगा, आप वाटर के स्पीड को कम कर रहे हैं जिससे सॉइल इरोजन कम हो रहा है. Afforestation. Roots of the plants hold the soil particles together. They also check the speed of running water. Check dams. Check dams prevent the spread of gullies. By plugging one end of a gully, sediments carried away by water are deposited in the gully. When gully is filled, the soil is stored. ठीक है. Shelter belts होते हैं भाई साहब of trees along the banks of rivers and streams reduce the speed of water and thus check the land degradation. मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड वीड कंट्रोल इन एग्रीकल्चर लैंड्स. तो मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड वीड कंट्रोल, ठीक है. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, जितने भी आपके वेस्ट लैंड्स हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, वो फैलने नहीं चाहिए, ठीक है. जैसे चंबल आपका एक वेस्ट लैंड है, ठीक है. कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है. यहाँ पे कुछ MCQs हैं, देखो. रिसोर्सेज शुड बी आपके क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिकली फीजिबल. इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब हम उसको इकोनॉमिकली प्रॉपरली, मतलब ज़्यादा पैसा अगर ना खर्चा करें उसको हम कर पाएँ. ऑन द बेसिस ऑफ डैश द रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल, कम्युनिटी, रैशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. तो ओनरशिप के हिसाब से. वाइल ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बेरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉइंट्स एक्सेट्रा आर, इसको अपन क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज. बेरियल ग्राउंड्स मतलब जहाँ पे दफनाते हैं हम, यहाँ पे जहाँ पे अंतिम क्रिया करते हैं. द ओशनिक resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone are international resources. तो हर एक, जैसे हमारे इंडिया के आजू बाजू इंडियन ओशन है, अमेरिका के आजू बाजू पैसिफिक ओशन है, तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर ये आपके इंटरनेशनल लाइन्स हो जाएंगे. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड फुली आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है. Land other than the current fallow lands are cultivated once and twice in about 1 to 5 years. There are many ways to solve the problems of land degradation. The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust. ठीक है. In Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to dash have caused severe land degradation. Mining, ठीक है. Total graphical area in India is 3.28 million square kilometer, but land use data, however, is available for 93% only. Red soil develops on crystalline igneous rock in areas of low rainfall. Red and yellow soil is red in color. The black soil develops cracks during the summer season. तो ये क्रैक्स अच्छे होते हैं ब्लैक सॉइल के लिए क्योंकि इसको एरेटेड रखते हैं, ठीक है. ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ क्ले मटेरियल्स. डैश सॉइल इज ब्लैक इन कलर, ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल. द डैश हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन. शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, सैंड ड्यून्स ज़्यादा ना फैलें इसलिए हम शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं जो ट्रीज़ के होते हैं. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है. समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट, ठीक है, ओवर अ लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप. डैश आर फॉर्म ड्यू टू वाटर इरोजन. तो गलीज बनते हैं भाई साहब. द प्रोसेस ऑफ सॉइल डैश एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली. सॉइल का फॉर्मेशन होना और सॉइल का इरोजन होना दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं. हमको इरोजन को बचाना है, ठीक है. कम से कम हमारी किसी एक्टिविटी से इरोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर पीपलम. आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट